عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لأجد في بطني ضعفا فقلت له أعيذك بالله من الضعف فقال يا فاطمة اهديني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجدت نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إذن بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال نعم قد أذنت لك ودخل زي سلامه تحت الكساء. اللهم صل على. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إذن بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يوم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين ودخل معهم الحسين تحت الكساء. يا الله. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة إذن بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم هاهما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل يسرنا والكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. الله. وقالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي والسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. الله. وقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادة الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله. وقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا
फ़क़ाल अल्लाह ताला नाम क़द अज़िनतु लका फ़हबतल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम वअक़बलना वलकसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल वस्सलाम व यख़ुस्सका बितहय्यत वल इकराम व यक़ूल लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नमा ख़लक़तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मदिया वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुला मअकुम तहत हाज़ल कसा फ़हल तअज़न ली अंत या रसूल अल्लाह अन अदख़ुला मअकुम फ़क़ाल क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्रील मअहुम तहतल कसा। वक़ाल लहुम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़ज़ा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरकुमुर रिज्स अलल बैति यतहहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अलैहिस्सलाम या रसूल अल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल कसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह तआला फ़क़ाल नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरसनय मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जौन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़रहिम रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम वल्लाह फ़ुज़ना व सअदना व कज़ालिका शिय्अतना फ़ाज़ व सअद व रब्बिल काबा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जौन मिन शिय्अतिना व फ़ीहि महमूम इल्ला व फ़र्रजल हम वला मग़मूम इल्ला व कशफ़ल ग़म वला तालिब हाजा इल्ला व क़ज़ा हाजतहु। फ़क़ाल अली वल्लाह फ़ुज़ना व सअदना व कज़ालिका शिय्अतना फ़ाज़ व सअद फ़िद दुनिया वल आख़िरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमत अंत फ़ातिहुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल ihसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिसअतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाह मुमिनात एक ऐलान समाअत फरमाए, कल इंशाअल्लाह ठीक 11 बजे सुबह जनाब जाफ़री साहब के यहाँ जो है जावेद जाफ़री साहब के यहाँ मजलिस हो गई, जिसको जनाब मौलाना कल्ब रशीद साहब खिताब फरमाएंगे। उनके दरे खिताब पर उनके घर पर आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश। चूँकि यहाँ 2 बजे या 3 बजे जुलूस का इंतज़ाम है, लिहाजा उन्होंने 11 बजे ठीक अपने घर पर मजलिस का प्रोग्राम है, आप हज़रात से उनके घर पर पहुँचने की शिरकत की गुजारिश है। कि नारे सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शायर अहले बैत फ़रहत अब्बास शाह साहब के कलाम के चंद बंद आप खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, शुक्र को एज़ाज़ बनाया कि खुदा है, और अकबर के लहू से किया तौहीद को तहरीर, अकबर के लहू से किया तौहीद को तहरीर, असगर की शुजाअत से बताया कि खुदा है, अकबर की शुजाअत से बताया कि खुदा है, और कासिम की शहादत से किया रेत को गुलशन, कासिम की शहादत से किया
रेत को गुलशन, बिखरे हुए फूलों में दिखाया कि खुदा है, बिखरे हुए फूलों में दिखाया कि खुदा है। और ज़ैनब का बयां लहजे अली और सौत खुदावंद, ज़ैनब का बयां लहजे अली और सौत खुदावंद। ज़ैनब ने ज़माने को बताया कि खुदा है, ज़ैनब ने ज़माने को बताया कि खुदा है। और एक सजदे से तब्दील किया शाह ने मंज़र, एक सजदे से तब्दील किया शाह ने मंज़र। तब मौत ने अंदाज़ा लगाया कि खुदा है, तब मौत ने अंदाज़ा लगाया कि खुदा है। और वो सजदा तो ऐसा हुआ, अल्लाह वो सजदा, वो सजदा तो ऐसा हुआ, अल्लाह वो सजदा, जब सामने ऐसे नज़र आया कि खुदा है, जब सामने ऐसे नज़र आया कि खुदा है। वो सजदा, वो सजदा तो ऐसा हुआ, अल्लाह वो सजदा, जब सामने ऐसे नज़र आया कि खुदा है आज तलक ज़िंदा व जावेद शहादत, है आज तलक ज़िंदा व जावेद शहादत। तुम अब तो समझ जाओ खुदाया कि खुदा है, तुम अब तो समझ जाओ खुदाया कि खुदा है। वो है आज तलक ज़िंदा व जावेद शहादत, है आज तलक ज़िंदा व जावेद शहादत। तुम अब तो समझ जाओ खुदाया कि खुदा है। और जहाँ में सिलसिले चश्म तर हुसैन का है, जहाँ में सिलसिले चश्म तर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है। और ये मस्जिदें जो हैं आज आबाद सजदों से, ये मस्जिदें जो है आज आबाद सजदों से, तेरा करम सही मौला समर हुसैन का है, तेरा करम सही मौला समर हुसैन का है। और हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज़, हमारी सुबह का नाम अली से है आगाज़। फिर इसके बाद एक एक पहर हुसैन का है, फिर इसके बाद एक एक पहर हुसैन का है। और तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है। तू छोटी छोटी अज़ादारियों से खाइफ था, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है, अब आके देख ये सारा नगर हुसैन का है। और यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का है। यहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, यहाँ कभी रहा करते थे आसमां वाले, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का है, वो जिस पे ताले पड़े हैं वो घर हुसैन का है। और मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, मेरी खामोशी को पहचान कर वो कहते थे, ये चुप ज़रूर खड़ा है मगर हुसैन का है, ये चुप ज़रूर खड़ा है। या अली या अली या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है जच रही मुझे अपने लिए यही तक़सीम, है जच रही मुझे अपने लिए यही तक़सीम। ये दिल अली का हुआ और सर हुसैन का है, ये दिल अली का हुआ और सर हुसैन का है। और मेरा परिंदे दिल मारा मारा फिरता है, मेरा परिंदे दिल मारा मारा फिरता है, पलट कर आएगा फरहत अगर हुसैन का है, पलट कर आएगा फरहत अगर हुसैन का है। और पलकों पे हया रहती है अजब हुस्न अदा से, पलकों पे हया रहती है अजब हुस्न अदा से,
अकबर की तरफ देख ना पाती थी हया से, अकबर की तरफ देख ना पाती थी हया से। यकजा हुआ ये हुस्न, यकजा हुआ ये हुस्न भी चेहरे पे सिमट कर, यकजा हुआ ये जो हुस्न भी चेहरे पे सिमट कर। हर देखने वाला उसे तकता था पलट कर, हर देखने वाला उसे तकता था पलट कर। और रुखसारों पे पड़ता था किसी नूर का हाला, और पेशानी पे शर्माए था सूरज का उजाला। और कदमों में बिछा करती थी परियों की निगाहें, और नालैन के बोसे को तरस जाती थी राहें। चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है। जीन पे बैठे नज़र आते थे कि अली है, जीन पे बैठे नज़र आते थे कि अली है। और सीना था कि मर्दाना वजाहत का नमूना, सीना था कि मर्दाना वजाहत का नमूना। और बाजी थे कि बाजू थे कि अब्बास की ताकत का नमूना, बाजू थे कि अब्बास की ताकत का नमूना। नहीं चांद के जोबन से बनी उसकी जवानी, ऐसे तो ना कहते थे मोहम्मद की निशानी। नहीं चांद के जोबन से बनी उसकी जवानी, ऐसे तो ना कहते थे मोहम्मद की निशानी। उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे। अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का है, अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दरिया था और थे तशनगाने करबला, सामने दरिया था और थे तशनगाने करबला। नासिराने दीन हक वाबस्तगाने करबला। और 14 सदियों से ज़माना गमज़दा है आज भी, 14 सदियों से ज़माना गमज़दा है आज भी। किस कदर पुरदर्द है ये दास्तान करबला, 14 सदियों से ज़माना गमज़दा है आज भी। किस कदर पुरदर्द है ये दास्तान करबला। और फिर यजीदी नस्ल दर्द सर बनी है ए खुदा, फिर यजीदी नस्ल दर्द सर बनी है ए खुदा। भेज दे पर्दे में है जो नासिराने करबला। और लाख आखिरी शब्द के लाख बारूदी सुरंगे राह में हायल रहे, लाख बारूदी सुरंगे राह में हायल रहें। करबला जाते रहेंगे आशिकाने करबला, करबला जाते रहेंगे आशिकाने करबला। हज़रत हुसैन दीन को जिसने भी तेरे बिन देखा, तो देखिए हुसैन दीन को जिसने भी तेरे बिन देखा, बरोज़े हश्र उसी ने ख़राब दिन देखा। हुसैन दीन को जिसने भी तेरे बिन देखा, बरोज़े हश्र उसी ने ख़राब दिन देखा। और अली के तेग ने जिसका नसर उड़ाया हो, अली की तेग ने जिसका नसर उड़ाया हो, कुएं में एक भी ऐसा न कोई जिन देखा। और हुरे जरी की तरह एक रात में जो फिरे, हुरे जरी की तरह एक रात में जो फिरे। किसी बसर का ना दुनिया में ऐसा दिन देखा, किसी बसर का ना दुनिया में ऐसा दिन देखा। और जो 6 महीने के सिन में हरा दे बातिल को, जो 6 महीने के सिन में हरा दे बातिल को। बस एक असगरे बेशीर का वो सिन देखा, बस एक असगरे बेशीर का वो सिन देखा। और उरूज माहे इमामत को है उरूज सदा, उरूज माहे इमामत को है उरूज सदा। उरूज माहे फलक सिर्फ चंद दिन देखा। और गमे हुसैन है, गमे हर एक दौर हर एक अहद पर हर ज़माने में, हर एक दौर हर एक अहद हर ज़माने में। उरूज मातम शब्बीर दिन ब दिन देखा, उरूज मातम शब्बीर
दिन ब दिन देखा और गम हुसैन से गम लाजवाल है अब तक। गम हुसैन है, गम लाजवाल है अब तक। ये गम वो गम है जिसे दुनिया ने रात दिन देखा। और मैं एक शेर से मौलाना मसूद को आवाज़ दूंगा कि फिर ज़माने को हैदर ससानी चाहिए, फिर ज़माने को हैदर ससानी चाहिए, और वक्त कहता है दुआओं में रवानी चाहिए। और आओ हम सब मिलकर कहें हज़रत अब्बास से, सारी दुनिया जल रही है, थोड़ा पानी चाहिए। आप लोग हज़रात के ज़ोरदार सलवातों के मौलाना मशहूर तशरीफ़ ला रहे हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल-मुवाहिदीन वन्नारु लिल-आसीना वलिल-काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल-इकराम अलल बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर। हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदिल अनाम वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ अजमईन अल-हुज्जतिस सानी अशर अल-इमामिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाहित ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला मजालिस की दूसरी मजलिस है और कल जैसा मौलाना ने ऐलान किया जुलूस की मजलिस है दोपहर या सेपहर में 3 बजे। और मैंने सूरह लैल की जो आयत रखी है आपके सामने, 2 आयतें हैं।
इन 2 आयतों में ऐलान परवरदिगार आलम ये है कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। अल्लाह कह रहा है तमाम मखलूक और बंदों की हिदायत मेरे हाथों में है। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और दुनिया और आखिरत के जो इख्तियारात हैं वो भी अल्लाह ताला के हाथों में है, उसके दस्ते कुदरत में है। हिदायत भी उसका इंतज़ाम वो करेगा, और दुनिया और आखिरत का जो कारखाना है, जो कारोबार है, सूरज का निकलना, दिन का नमूदार होना, दिन का रात में तब्दील होना, तोलेजुल लैला फिन नहारे व तोलेजुल नहारा फिल लैले, वो वही अल्लाह है जो रात को दिन में बदलता है और दिन को रात में बदलता है। इसलिए कि इख्तियार उसने कहा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, दुनिया और आखिरत के इख्तियारात हमारे हाथों में है। तुम साइंस से कितनी भी तरक्की कर लो, इख्तियारात तुम्हारे हाथ में आ नहीं सकते। तुम बम बना सकते हो, तलवार बना सकते हो, बंदूक बना सकते हो, कलाशिनकोव बना सकते हो, पिस्तौल बना सकते हो, टैंक बना सकते हो, लेकिन तुम इतने हथियार और असलहे बनाने के बाद किसी को ख़त्म नहीं कर सके, इसलिए कि मौत और ज़िंदगी हमारे हाथ में है। और तुम देख लो, अगर दुनिया और आखिरत के इख्तियारात उसके हाथों में ना होते, तवज्जो का मकाम है, अगर दुनिया और आखिरत के इख्तियारात उसके हाथों में ना होते, वो कह रहा है ना इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। हादी बनाना हमारा काम है, हिदायत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, ये काम तुम्हारा नहीं है। तवज्जो का मकाम है। हम हादी बनाएंगे, हम जिसको चाहे नबी बनाएं, जिसको चाहे रसूल बनाएं, जिसको चाहे इमाम बनाएं, जिसको चाहे खलीफा बनाएं। तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाना। बिल्कुल जिंदा जुमला कह रहा हूँ। नतीजा ये होगा कि तुम हमारी पहली मंजिल में हिदायत का काम हमारा है, तुम दखल दोगे और तुम अपने हाथों से बनाओगे तो वो खुद तो हलाक होगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। और हम जिसे बनाएंगे वो ये कहेगा मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, और तुम जिसे बनाओगे वो कहेगा ये ना होता तो मैं हलाक हो जाता। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर दूसरी मंजिल में कह रहा है, दूसरी आयत में व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। जहाँ हादी बनाना और हिदायत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, वहाँ दुनिया और आखिरत का इख्तियार भी हमारे हाथों में है। हम जितना चाहें दिन को रखें, चाहे 12 घंटे का कर दें, हम चाहे तो सर्दियों में रात को तूलानी कर दें, हम चाहें तो 4 महीने की जगह बारिश को 6 महीने कर दें। हमारा सूरज तपिश पर आए या थोड़ा बादलों में छुप जाए, ये इख्तियार हमारा है। हम चाहें तो तुम एक दाना डालो, वो दाना भी हमारा दिया हुआ है। वो एक दाना तुम ज़मीन में डालो, हम एक दाने के 700 दाने देंगे। तो याद रखो, दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तुम टैंक बनाओ, बम गोले बनाओ, हथियार बनाओ, असलहे बनाओ, मूशिक बनाओ, है ना। अमेरिका तुम सुपर पावर बनो, रूस तुम एक ताकत बनो, तुम जो कुछ भी बन जाओ, तुम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ो, केमिस्ट्री से आगे बढ़ो, साइंस से आगे बढ़ो, अक्ल तो हमारी ही दी हुई है, दिमाग और माइंड हमारा दिया हुआ है। वरना ये बताओ, जिन्होंने कितनी चीज़ें बनाई, तवज्जो का मकाम है, या इंकिशाफ की। एक जुमला जहन में रखे, अगर किसी ने मोबाइल जो बनाया है, या फ्रिज बनाया है, या माइक बनाया है, बात समझ रहे हैं ना। ये जो कूलर है किसी ने बनाया है, ये माइक, ये मोबाइल, ये टेलीफोन, ये हवाई जहाज़, ये टेलीविज़न, तो ये उसकी ईजाद नहीं है, इंकिशाफ है। बड़ा अजब जुमला कह रहा हूँ, पूरे स्टडी से, होमवर्क से। यानी कोई भी साइंसदान अगर कोई चीज़ आपको जाहिर करे,
डिक्लेयर करे, मार्केट में लाए, तो ये उसका इंकिशाफ है, ईजाद नहीं है। ईजाद यानी मूजिद, ईजाद करने वाला। इंकिशाफ यानी तहकीक, रिसर्च, इल्म के ज़रिए उस चीज़ को मार्केट में लोगों के दरमियान जाहिर करने वाला। तो तुम कितनी भी तरक्की करो, तुम मूजिद, ईजाद करने वाले नहीं हो, तुम इंकिशाफ करने वाले हो। मूजिद सिर्फ खुदा की ज़ात है जो हर चीज़ का बानी, फाउंडर और ईजाद करने वाला है। वरना कितनी चीजें बन गई, बनाने वाले साइंसदान जिंदा क्यों नहीं है? तो मानना पड़ेगा कोई मूजिद है जो इस साइंसदान की जिंदगी को मौत में तब्दील कर चुका है। कोई इतना ऐसा है जो जाहिल को आलिम बना देता है और आलिम को इतना निसियान और भूल दे देता है कि वो अपना हासिल किया हुआ इल्म भूल जाता है। तो मालूम हुआ उसकी ताकत सारे ताकतों पर गालिब है, बात आएगी। लिहाजा तवज्जो दें का हथियार तुम बनाओ, असलहे बनाओ। कितने बम बरस रहे हैं, ये मुल्क ने उस मुल्क पर, ये कंट्री ने उस कंट्री पर। इशारा मेरा ये न्यूज़ पर, ख़बरों पर तुम्हारी निगाह ज़्यादा है आपकी। अभी हालात हज़रा को देखें, है ना, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई। उसने कहा देखो कितने बम गिरे, तुमने गिराए, कितने असलहे चलाए, गोलियां चलाए, लेकिन हमने उसकी मौत ना चाही तो वह जिंदा रहा। और कितने ऐसे थे ना उन पर कोई बम गिरा ना गोली चली, करोड़पति अरबपति थे, मगर हम नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहें। तवज्जो का मकाम है। हमने चाहा तो शिकम मादर में मौत दे दी, हमने चाहा तो आगोश मादर में मौत दे दी, हमने चाहा तो बंगले और काटेज में नौकर चाकर दौलत होने के बावजूद मौत दी, और हमने चाहा तो फुटपाथ पर सोने वाला मच्छरों में सो रहा है, हम जिंदगी दे रहे हैं। तुम देखो अरबपति है मगर शक्कर की चाय नहीं पी सकता, लेकिन हाथ गाड़ी और ठेला खींच रहा है मगर सब कुछ खा रहा है। अब तो हमारे इख्तियार को समझो कि दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। हम चाहे तो एक वक्त में 70 नबियों को शहादत दे दे, हम चाहे तो नूह को 2500 साल की जिंदगी दे दे, हम चाहे तो अपने दुश्मन शैतान को मालूम मुद्दत तक जिंदा रखें, और हम चाहे तो तमाम हादियों के नतीजे को पर्दे गैब में हयात अता कर दे, ताकि दोनों रास्ते सामने रहे। गुमराह करने वाला शैतान अपना काम करता रहे, हुज्जत खुदा पर्दे गैब से अपना काम करते रहे। देखो दोनों की ताकत का अंदाजा लगाओ, एक हक है एक बातिल है, एक रहमान है एक शैतान है, एक नजात है एक हलाकत है, एक हिदायत है एक गुमराही है। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आता तो सुनो, मूसा का जिक्र है, फिरौन का नाम नहीं है, इब्राहिम का जिक्र है, नमरूद का नाम नहीं है, अली का जिक्र जिंदा है, अली के सामने आने वाले का नाम नहीं है, हुसैन जिंदा है लेकिन लाखों लश्कर यजीद का पता नहीं। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाल। जज़ाकल्लाह। तवज्जो दें आप, हुसैन जिंदा है। माइक का साउंड सिस्टम अच्छा है, मेरा साउंड बिगड़ा हुआ है ना, मेरी सौत जो है थोड़ी कुछ नहीं, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी सेहत तो सलाम। मैं आपको कहीं ले जाता हूँ, अगर आप मुतवज्जे हैं, माशाल्लाह आप ईमानी जज्बा है। ये बताइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बज़ाहिर कितने हैं? बज़ाहिर अभी हम तारीख़ में नहीं जा रहे हैं, गहराई में। कितने? 72। उसमें औरतें बच्चे बज़ाहिर जो शहीद हैं, शहीदान करबला 72 है। तारीख़ में इख्तलाफ है, वो अलग चीज़ है, मोतबर 72 हैं। उसके बाद बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, औरतें हैं।
सामने हज़ारों लाखों का मजमा है कि नहीं? सुन्नी उलमा भी पढ़ रहे हैं, शिया भी पढ़ रहे हैं, हुसैनी बरहमन भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, अब तो इंतहा हो गई ईसाई भी पढ़ रहे हैं। चर्च में मातम हो रहा है, देख लीजिए। ये हुसैनियत के ज़िंदा होने की दलील है। ज़रा सोचिए, बात को मैं ले जा रहा हूँ, समझिए। उसने कहा देखो दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। लश्कर यजीद में कितने एक से एक, शिम्र मलून लानतुल्लाह अलैह, इब्ने ज़ियाद कूफा में, यजीद मलून शाम में, इब्ने ज़ियाद कूफा में। यहाँ पर झगड़ा चल रहा है उमर साद और शिम्र के बीच में। शिम्र मलून और उमर साद खूली भी है, इसलिए कि यजीद मलून के नीचे इब्ने ज़ियाद है, उसके नीचे जो है उसके अंडर में ये सब हैं। हुर कहाँ है? हुर उधर है। 1000 लश्कर यजीद का कमांडर, 1000 सिपाहियों का सरदार है ना भाई, सही कर रहा हूँ मौलाना? तारीख़ की रोशनी में उमर साद मलून, शिम्र मलून, खूली मलून, ये सब कमांडर। इब्ने अशस, मोहम्मद बिन अशस, ये जोधा बिनते अशस का भाई, यही मलून जनाब मुस्लिम को गिरफ़्तार करने कूफा गया था। जोधा बिनते अशस, हमारे मौला को जहर देने वाली। ये सब छोटे छोटे सरदार, कमांडर, 5000 सिपाही, 3000 सिपाही, तवज्जो दें, 1000 सिपाही, बिल्कुल नया रुख है। और उसमें हुर भी है, हुर इब्ने यजीद रियाई। शिम्र चाहता है मलून के सरदारी पूरी मुझे मिल जाए, उमर साथ हट जाए। उमर साथ को लालच है कि हुकूमत रहे, लेकिन वो नहीं जानता हम उसको इमाम मानते हैं जो मछली की भूख से भी वाकिफ़ होता है। हम मुसल्लाती इमाम को नहीं मानते। बात समझिए तो सही। हमारा अकीदा है, हम उसे इमाम मानते हैं जो समंदर की मछली की भूख से भी वाकिफ़ होता है। हम उसे इमाम मानते हैं कि अभी रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, हवाले बड़े बड़े अल्लामा और उस्तादीन के, आप जानते हैं मैं हवाले देता हूँ, सब औराक रखता हूँ साथ में, सारे औराक का रेफरेंस है। कम से कम 22 रेफरेंस ऐसे हैं कि इमाम ने कहा पूरी कायनात हम अहले बैत के सामने ऐसी ही है जैसे तुम्हारी हथेली पे सिक्का। जब अहले बैत की अजमत है तो अहले बैत जिन्हें सजदा करे वो खुदा क्या है? एक जुमला कह दूं, आप खामोश मत रहिए। अली के माने क्या है? बुलंद। अली के माने बुलंद, हाँ, अली के माने, और आला के माने बहुत बुलंद। मैंने स्टडी किया, लुगत में देखा, आप देख लीजिए फेरोजुल लुगात में भी और अल मुंजिद में। आला माने बहुत बुलंद, बहुत ज़्यादा, आखिरिया सुबहान रब्बियल, यानी इतने नीचे जाकर मैं तेरी इस कदर बुलंदी का ऐलान कर रहा हूँ। ये है सजदे का राज। मैं इतना नीचे गया हूँ, अब इससे नीचे नहीं जा सकता, इतना इससे ज़्यादा झुक नहीं सकता, इसलिए कि तरीक़ा तूने ही बताया, ऐसे झुको, ऐसे वैसे मत झुक जाओ, सजदे का तरीक़ा। तो नीचे जाके क्या कह रहा है बंदा? सुबहान रब्बियल आला। आला माने बहुत ज़्यादा बुलंद, इससे बुलंद कोई नहीं, इससे ज़्यादा बुलंद नहीं। यानी गोया वो सजदा करने वाला नमाजी ये बताना चाहता है मैं इतना नीचे जाकर तुझे इतना ऊंचा मान रहा हूँ। इन्हें जितना मैं नीचे हूँ तो उतना ही ऊंचा है। अब लुग़त देख लें, मुझे नहीं मालूम पीर के क्या माने, मुफ्ती के क्या माने हैं, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना के क्या माने वो सब आप जानते हैं। खलीफा के क्या माने? खलफ, पीछे रहने वाला, खलीफा पीछे, इमाम माने आगे। लुग़त देख लें, जाइए भिंडी बाज़ार से ख़रीद लें, मोहम्मद अली रोड से, सभी की एक जैसी है। खलीफा खलफ से पीछे, इमाम माने आगे रहने वाला, तवज्जो का मकाम है, इसलिए कहते इमाम जुमा, इमाम जमात, इन्हें जमात और जुमा में आगे। मौलाना नौशाद साहब इमाम जुमा और जमात हैं आदर्श नगर के। इमाम माने आगे, बस आहिर, खलीफा माने पीछे, यानी जो बाद में, खलफ नबी के बाद। नबी के क्या माने? खबर देने वाला, न्यूज़।
उसी से बना। कैसे बना नबी? नबा। नबा माने खबर। कुरान में है अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अजीम। ये लोग आपस में एक दूसरे से अजीम खबर के बारे में सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से। नबा माने खबर, उसी से बना नबी, यानी वहाँ की खबरें देने वाला। रसूल क्या माने हकीम साहब? रसूल माने रिसाला लाने वाला, लिटरेचर, रिसाला किताब। अरबी में रिसाला कहते ख़त को, तहरीर को। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये क्या है? सब तहरीर है, रिसाला है अल्लाह का। रिसाला, ख़त, किताब लाने वाला, रसूल, मैसेंजर। रिसाला लाने वाला, पहुँचाने वाला, ये माना है। आला माने बहुत बुलंद और अली माने बुलंद। अब ज़रा सोचे मैं क्या ले जा रहा हूँ। अब क्या लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, तो आप नाम रखने के लिए किसके पास गए? बच्चे को मौलाना पास कि नेताजी के पास, कारपोरेटर के पास, किसी पंडित जी के पास? हर धर्म, हर कम्युनिटी का आदमी अपने पंडित, धर्मगुरु, फादर, मौलाना के पास। क्यों? कि भाई मौलाना की लुगत पर, डिक्शनरी पर निगाह है, कुरान हदीस से अच्छा नाम देंगे। जहन में रखिए, आला और अली। अली माने बुलंद और आला माने बहुत बुलंद, आखिरी सतह पर। आपका नाम है तो आप हेडमास्टर से, प्रोफेसर से, टीचर से, किसी ऐसे वैसे आदमी से, यहाँ तक कि आप अपने डिस्पेंसरी के डॉक्टर से भी बच्चे का नाम नहीं मांग रहे। बच्चा बीमार है तो डॉक्टर, नाम रखना है तो मौलाना। क्योंकि मौलाना ऐसा नाम देंगे जो बरकती हो, कुरान से, अहले बैत से। तो अब ज़रा सोचिए वो हस्तियाँ कितनी बुलंदो बाला हैं, कितनी फजीलत माब हैं कि जिनके नाम दुनिया में किसी ने नहीं रखे। मैं कुछ कह रहा हूँ, हरकत में बरकत है। उनके नाम अल्लाह ने रखे। यानी उसने नाम क्या रखा? मोहम्मद। उसने नाम अली रखा। वो महमूद था तो नाम मोहम्मद रखा, आला था तो नाम अली रखा, फातिरुस समावात वल अर्ज़ था तो नाम फातिमा रखा, मोहसिन था तो हसन रखा, ख़दीमुल एहसान था तो हुसैन रखा। तो कहा जब ये बच्चों के नाम मैंने रखे इस ख़ानदान के, हत्ता कि रिवायत में है, उलमा कहते अब्बास नाम भी उसने रखा, ज़ैनब नाम भी उसने रखा। का याद रखो, सब और है, ये और है, सब खाक से है, ये मेरे नूर से है। जो मेरे नूर से है, तो जब मेरे नूर से है तो इनके नाम भी मैं ही दूंगा। अब बात समझ में आई? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला। तब एक ही जुमले में काफ़ी है। आला माने बहुत बुलंद, अली माने बुलंद। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बहुत बुलंद हूँ तो पूरी मखलूक में आदम से क़यामत तक मेरा एक बंदा अली ऐसा है कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ अली बुलंद। मैं ये चाहता हूँ मैं बुलंद रहूँ तो ये भी बुलंद रहे, कहीं झुकता हुआ नजर ना आए। ये मैदान में आए तो शेर नजर आ जाए, ये काबे में आ जाए तो पुतों को तोड़ता हुआ, ये रसूल के कांधों पर नजर आए तो बुलंद नजर आ जाए, ये शबे हिजरत बिस्तर पर आ जाए तो इसका सोना जहाद नजर आ जाए। ये जागे तब भी अली है, ये सो जाए तब भी अली है, ये मिंबर पे है तब भी अली है, ये दुनिया में है तब भी अली है, ये माँ के शिकम में है तब भी अली है, मेरे घर काबे में आ जाए तब भी अली है। ये कल भी बुलंद था, ये आज भी बुलंद है। अरे जब तेरे 70,000 मेंबर इसे मिटा ना सके, चलो हाथ पर दे बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। रोजेश भाई, मुर्तुजा भाई, 70,000 मेंबर, कितने? 70,000 मेंबर, 60 साल, 70 साल, रिवायत पढ़ी आप अलग अलग। 1000 मंथ, 1000 महीने, उससे भी ज़्यादा, ये ना 1000 महीने उससे ज़्यादा, 60-70 साल, 70,000 मेंबर पर अली को सब्बो सितम, गालियाँ,
फ़ज़ाइल हटाए जा रहे थे, मनाक़िब मिटाए जा रहे थे, अली की फजीलत दूसरों की तरफ मोड़ी जा रही थी। ज़रा सोचने का मकाम है। लेकिन एक जुमला दे रहा हूँ, अगर आप संभाल लें, मेरी आवाज़ जो बैठी है उसका मिसयूज़ मत कीजिए, साथ दीजिए। ज़रा सोचिए, देख दुश्मन आके देख, कल 70,000 मिंबरों से तू नाम अली को मिटा रहा था, आज 70 लाख मिंबर सिर्फ अली अली कर रहे हैं। और ये भी देख ले, जो अली को पहला माने वो भी अली अली कर रहा है, जो अली को चौथा माने वो भी अली अली कर रहा है। और इंतहा हो गई कि हम नहीं, कितने तो ऐसे हैं जो सिर्फ अली अली ही कर रहे हैं, चाहे वो नुसैरी की शक्ल में हो या सूफी की शक्ल में। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाल। बताइए, तो मेरी बात कहाँ से शुरू हुई थी? आज हुसैन है, हुसैनियत है, कहाँ है यजीद और यजीदियत, कहाँ है? ज़रा सोचिए, कौन जानता है तुम्हारे बुजुर्गों को? किसी हिंदू से पूछिए, रसूल की वज़ू में इतने लाख थे, कितनों को जानता है? जिंदाबाद कह रहा हूँ। आप कुछ कहें या ना कहें, मैं कुछ कह गया। जाइए आज 2022 में इसी बम्बई में सर्वे कीजिए, सिखों को लाइए, ईसाइयों को लाइए, हिंदुओं को, मुसलमानों को, शिया सुन्नी, पूछिए 1.25 लाख थे कि नहीं, लेकिन कितनों को कोई जानता है? बड़ा अजब मजमा है भाई, कितनों को जानते हैं? लेकिन जा किसी भी फील्ड में चले जा, मेरा चैलेंज है, मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा। आज दुनिया का हर मजहब अगर किसी को जानता है तो अली को जानता है, हुसैन को जानता है, पंजतन को जानता है, आशूर को जानता है, अज़ादारी को जानता है, अलम को जानता है। ये इंतज़ाम कुदरत है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लला लल आखिरता वलूला। हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम जिसको चाहे हादी बनाए, हम हादी बनाएंगे तो हर दिल में जिंदा रहेगा। तुम अपने हाथों से ठोक ठाक के बनाओगे तो तुम्हारे बीच में ही जिंदा नहीं रहेगा। हिंदू तो दूर की बात, तुम ही नहीं बता सकोगे कि कब आए और कहाँ गए। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो दे, जो बात से शुरू किया था मैं, कहाँ है? तो मैं ये कह रहा था ना, जो बात शुरू हुई थी, शिम्र मलून, शिम्र चाहता था कि सरदारी, बोलिए, पूरा पावर मुझे मिल जाए, उम्र साथ मलून से छिन जाए। जैसा इब्ने ज़ियाद के लेटर पे लेटर, ख़त पे ख़त आ रहे थे, और एक जुमला लिखा था इब्ने ज़ियाद ने उम्र साथ को, तुझे कमांड संभालनी है तो संभाल, नहीं तो पूरा पावर किसको दे दे? शिम्र को, और नहीं तो हुसैन को कत्ल कर। बता जल्दी, पसो पेश मत कर, पीछे मत हट। क्या कहा था उसने? बिल्कुल, इसलिए कि मेरी हुकूमत राय, हुकूमत राय की लालच दिए थे, बोलिए दिए थे नहीं मौलाना? लेकिन मौला हुसैन ने क्या कहा था? क्या कहा था मौला ने? क्या कहा था? हुकूमत राय तो दूर की बात, इतना मशहूर जुमला शिया सुन्नी उलमा दोनों पढ़ते हैं। हुकूमत तो दूर की बात, ये बम्बई की हुकूमत, ये हिंदुस्तान की हुकूमत राय तेहरान में, ये हुकूमत सल्तनत राय की हुकूमत तो दूर की बात। मौला हुसैन ने कहा था किसको? उमर साथ को, तुझे राय का गेहूं का दाना भी नहीं मिलेगा। देखो, अल्लाह ने कहा हम जिसको चाहे हादी बनाए, ये अल्लाह का बनाया हो हादी। ये हुसैन बेटा अली का है, जो अली कल कह रहे थे मैं अली ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। ये तुझे की तस्दीक है कि इमाम ज़माना से लेकर हर इमाम कहता है पूरी कायनात हमारी निगाह में ऐसी है जैसे तुम्हारे हाथ पर सिक्का। ये हुसैन का जुमला बता रहा है। इमाम वो है जो कायनात के गोशे गोशे पे निगाह रखता है।
जो दिलों के हालत से वाकिफ़ है। बात को समझिए, मैं क्या ले जा रहा हूँ। आज हुसैन मर्जे खलाइक हैं, हुसैन का रोज़ा मर्जे खलाइक है। आज रोज़ा हुसैन पर अरबईन और आशूर में लाखों करोड़ों ज़ायरीन जमा होके ये बता रहे हैं कि 72 जिंदा हैं, लाखों मिट गए। मैं आपको कहीं ले जा रहा हूँ, काश मैं समझा सकूँ आपको। तो ये बताइए, ये लश्कर यजीद में लाखों थे। तारीख़ ने लिखा सिर्फ हज़रत मुख्तार सक़फ़ी अलैहिस्सलाम ने ही 80,000 को वासिल जहन्नम किया। तारीख़ मुख्तार में, भले वो मोतबर है गैर मोतबर है, लेकिन जुमले हैं। 80,000 को वासिल जहन्नम किया। उस ज़माने में कितने भाग गए कश्तियों से, पानी के रास्ते से, ये कोकन पट्टी में आके बस गए। जुमला मेरा है, पढ़िए तारीख पढ़िए, इशारा मेरा, आप जो कोकन समझते हैं। सोचिए, उस ज़माने में भागे, मुख्तार के हाथों से बच के भागे, अब यहाँ आ गए तो आज तक असरात बाकी हैं। आप देख लीजिए, थाना के करीब इतने भागे, सोचिए। लेकिन लश्कर यजीद में से कौन आया, बोलना आपको है, मैं कहीं ले जा रहा हूँ आपको। हुर इब्ने यजीद है कमांडर, वो पूरी तारीख आपको मालूम है। अब मैं ले जा रहा हूँ करबला, आप जाइए, एकदम जिंदा बात, नई बात, नई फिक्र। करबला गए, अल्लाह आप सबको नसीब करे। करबला जाइए, बार बार नसीब हो। करबला में मौला हुसैन का रोज़ा है, मौला अब्बास का, बोलिए ज़ोर से, है ना। हबीब इब्ने मज़ाहिर का अलग से है, गंज शोहदा, औन का रोज़ा है, जनाब औन मोहम्मद में, औन का दूर। बात को समझना है, मैं कहीं ले जा रहा हूँ, काश एक नई फिक्र दे रहा हूँ। यकीन मानिए, ये मिंबर की अता है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है ये चीज़, कहीं भी नहीं, ना आपने सुना है मुझसे। चूँकि आपका जज्बा ईमानी देख रहा हूँ, आपके अंदर जोश व वलवला है। सोचिए, हुसैनियत आज जिंदा है, यजीदियत मुर्दा है। हुसैन आज हर दिल में जिंदा है, हर कौम में, हर समाज में, हर माशरे में। यजीद का कहीं नामो निशान नहीं। लश्कर यजीद में लाखों, हुसैन में मुख्तसर, वो मुख्तसर में भी सब शहीद हो गए। तज़िये को समझना है, इसी का नाम तो करबला है, इसी का नाम तो हक़ानियत है, इसी का नाम तो नजात है, इसी का नाम तो अज़ा और अज़ादारी है। सोचिए, दौलत वहाँ, पैसा वहाँ, जाओ हशम वहाँ, लश्कर वहाँ, हथियार वहाँ, असलहे वहाँ, सरदारी वहाँ, खुशियाँ वहाँ, सब कुछ वहाँ। या मसाइब, मुसीबत, गम, प्यास, भूख, वतन से बेवतन, किसी की बीवी दूर, किसी की माँ दूर, किसी का बच्चा दूर, कोई माँ के बगैर, कोई बीवी के बगैर। हबीब ज़ौजा को छोड़ के आए कि नहीं? तो सोचिए, कोई बच्चों के बगैर आया, कोई दुल्हन को लेकर आया, कोई माँ को लेकर आया, कोई रिश्तेदारों को छोड़कर आया। भूख, प्यास, मसाइब, आलाम, मुसीबत, गम ही गम, लेकिन सबकी निगाहों का नुक्ता नज़र हुसैन की ज़ात, और हुसैन का नुक्ता निगाह अल्लाह की ज़ात। बात को समझना है, कहीं ले जा रहा हूँ आपको तज़िया करके। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, वैसी मजलिस शायद नहीं हो रही, लेकिन समझे, ज़रा सोचे। आज दुनिया को बताइए कि वहाँ लाखों ऐशो आराम में थे, और यहाँ मुख्तसर भूख, प्यास और मसाइब आलाम में थे। ईसाई आओ, यहूदी आओ, सिख आओ, हिंदू आओ, सुन्नी आओ, शिया आओ, हर एक कम्युनिटी से सवाल करो कि आज की दुनिया में हर एक उधर दौड़ता है जहाँ ऐशो आराम हो। मैं क्या कह रहा हूँ हकीम साहब, आप क्या सुन रहे हैं? अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। यहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी है, यहाँ खाना नहीं है, वहाँ खाना है, यहाँ रोटी नहीं है, वहाँ रोटी है, यहाँ टेंशन ही टेंशन है, वहाँ आज़ादी है, यहाँ मसाइब है, वहाँ आज़ादी और सुकून है, यहाँ गम ही गम है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ दौलत के अंबार है, राय की हुकूमत मिलने वाली है, किसी को सरदारी मिलने वाली है, किसी को महल मिलने वाला है। तो होना ये चाहिए था। सुने आदर नशर की तारीख में, आदर्श नगर की तारीख में सुने, नूर अली आब्दी एक तालिब इल्म एक तज़िया मिंबर से अयाज भाई सुने, सुनिए आप, तवज्जो दे मेरी तरफ, मुझे सबके नाम याद नहीं,
आतिफ भाई सुनिए, होना तो ये चाहिए था, मुसलमान माह रमजान में चंद घंटे खाना और पानी को रोजे में बर्दाश्त नहीं करता। क्या पढ़ रहा हूं मैं? रोजे में बर्दाश्त नहीं करता। 5 बजे से मार्केट खुल जाते हैं। हर एक कुरान के सामने कम नजर आता है, इफ्तारी के चक्कर में ज्यादा। मैं जिंदाबाद कह रहा हूं, यानी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की राह में है, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। मालूम है कि दिन भर थोड़ा बहुत जितना भूखा रहा उससे ज़्यादा मिक्सर बन के खाने वाला है। मगरिब को इफ्तार में उसके बावजूद बेचैन है। 5 बजे से ये फल ले ले, ये फ्रूट ले ले, ये रोटी ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो होना क्या चाहिए? प्यास लगी तो प्यासे के सामने पानी वहाँ हो, यहाँ कुछ ना हो तो दौड़ेगा पानी की तरफ। दुनिया तो पैसा दे के पानी खरीद लेती है। इशारा मेरा, तज्जिया मेरा, समझना आपका काम है, तफसील का मौका नहीं है, सोचने का मकाम है। तो होना तो ये चाहिए था, दुनिया को रखो, तज्जिया करो, यजीदियत और हुसैनियत को रखो, करबला को रखो, लाखों का लश्कर यजीद का, मुख्तसर सिपाही जमात हुसैन की, वहाँ सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं। सिर्फ फ़र्क क्या था? यहाँ कुछ नहीं था दुनिया के एतबार से, मगर यहाँ तौहीद थी, वहाँ तौहीद नहीं थी। यहाँ नबूवत और रिसालत थी, वहाँ रिसालत और नबूवत नहीं थी। अब जुमला को पलट रहा हूँ, यहाँ इमामत थी, वहाँ इमामत नहीं थी। ये कहो यहाँ अल्लाह का बनाया हुआ हुसैन की शक्ल में हादी था, हादी था, वहाँ कोई हादी नहीं था। बात को समझे, बात पूरी नहीं हुई। होना ये चाहिए था। आज की दुनिया में लोग सब्र नहीं करते, है ना? कितने अच्छे खासे खा जाते हैं। शुगर का मरीज है फिर भी चाय की शक्कर की चाय पी गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना? मुसलमान है, कभी इसका उसका नहीं खाता, पाकिज़गी का ख्याल रखता है, लेकिन ट्रैवलिंग में इतनी भूख लगी कि बर्दाश्त नहीं हुआ, लोनाला में जाके खा ही लिया। अरे बड़ी जिंदाबाद कह रहा हूँ, कौन देखने वाला है? खा लो वड़ा पाव। समझ रहे हैं कि नहीं इशारा? मुसलमान का है कि किसका है? खा लो। सोचिए, यानी सबके सब साथ छोड़ देते हैं, न सब्र है न ज़ब्त है, ईमान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वारे हुसैन और हुसैनियत, ऐसों का इंतखाब किया हुसैन ने कि यजीद तेरा पानी तेरे पास रहे, हमें हुसैन प्यारा है, तेरा खाना तेरे पास रहे, हमारा हुसैन हमें प्यारा है, तेरा ऐशो आराम तेरे पास रहे, हमारा हुसैन हमें प्यारा है। हुसैन है तो हर गम मंजूर है, हुसैन है तो हर मुसीबत मंजूर है। अरे हुसैन के साथ 3 दिन क्या, पूरी जिंदगी हमें प्यास गवारा है। इसीलिए तो करबला के शहीदों ने कहा, मौला हुसैन अगर एक नहीं 70 मरतबा, 70,000 मरतबा हमें कत्ल किया जाए, हमारे लाशों को कूटा जाए और हमें जलाकर हवा में उड़ाया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर हम जिंदा होके कहेंगे हुसैन हमारा है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मैं कहीं ले जा रहा हूँ आपको। मैंने जो इतनी तो आपको जहमत दी है, घुमाया है, एक छोटी सी चीज़ है, आपको समझना है। ज़रा सोचिए, समझ रहे हैं? अगर आप समझें तो यकीनन मैंने जो जहमत उठाई, मेहनत की है, थोड़ी सी जगह पर मिंबर की आता है, लाखों मुख्तसर गमी गम, मसाइब आलम, भूख प्यास, तो होना ये चाहिए था। सवाल करो तमाम दुनिया के मज़ाहिब से, हर कम्युनिटी से सवाल करो, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, सवाल करो। होना ये चाहिए था कि जहाँ प्यास और भूख मसाइब व आलम थे, यहाँ का निकलकर कोई वहाँ चला जाता। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं?
जहाँ भूख प्यास मसाइब आलाम थी, तकलीफ थे, गम था, मौत थी, शहादत थी, यहाँ से कोई निकल कर वहाँ चला जाता जहाँ सब कुछ था। लेकिन देख लीजिए तारीख, हुसैन के लश्कर से निकलकर कोई नहीं गया, लेकिन यजीद के लश्कर से कमांडर हुर आया, हुर का बेटा आया, हुर का गुलाम आया। तो अब हुसैन ने कहा जब आया है तो सुन, मुझे मिंबर पर खड़े रहने पर मजबूर न करे, पूरी मजलिस इस जुमले पर कामयाब होगी अगर आप मेरा साथ दें। देख ले, एक नया पहलू दे रहा हूँ बम्बई आदर्श नगर की तारीख में। जाइए करबला, गए कि नहीं? तो करबला में हुसैन का रोज़ा है, मौला अब्बास का रोज़ा है, हबीब इब्न मज़ाहिर का है, गंजे शोहदा है, औन का रोज़ा है। लेकिन असहाबे हुसैनी में मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी शहीद हुए सब एक साथ गंजे शोहदा की शक्ल में दफन है। लेकिन तन्हा क्या राज है, तन्हा क्या राज है? एक सिपाही हुसैन का है जिसका अलग से रोजा बना हुआ है, वो है हुर। मजमा समझ नहीं रहा, मैं समझ चुका मौलाना। वो है हुर, यानी हबीब बचपन से थे हुसैन के दोस्त। अगर उनकी कब्र अलग से है तो ये कोई कमाल नहीं होगा। बाकी साथी एक जगह दफन, जो एक रात में आया वो रूमाल भी ले गया फातिमा का, हुसैन का जानू भी मिला, और मरने के बाद अलग से रोजा भी बन गया। मैं भी नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। अब मैं जो कह रहा हूँ दावत दो दुनिया वालों को। बताओ दुनिया वालों, लश्कर यजीद में लाखों थे, लश्कर यजीद में, बोलिए मेरा साथ दीजिए। हुर कहाँ था? वहाँ, यहाँ आ गया। मैं कुछ कह रहा हूँ तो अगर हुसैन का रोज़ा है तो ताज्जुब नहीं, अब्बास का रोज़ा है तो ताज्जुब नहीं, ये तो सब नूरे खुदा है। हुर तो वहाँ का था, हुर वहाँ का था, हुर वहाँ का था यजीद का। यहाँ आया तो कुदरत ने बताया, खुदा ने, देखो जो मेरे हुसैन के पास आ जाता है। इसलिए कि जो नहीं आए तो बता ज़माने, इब्ने ज़ियाद की कब्र है, यजीद की कब्र है, शिम्र की कब्र है, पूरे लश्कर की कब्र है, लेकिन यजीदियत को छोड़कर हो आया तो रोज़ा है। सोचिए, नहीं समझा? अगर यजीदियत में रहता तो आज हुर का नामो निशान नहीं रहता। सोचिए, अरे जो मेन कमांडर था यजीद, उसकी कब्र का नामो निशान नहीं, इब्ने ज़ियाद कब्र का नामो निशान नहीं, शिम्र मलून, खूली, उमर साद, बड़े बड़े चीफ और कमांडर थे। पूरा लश्कर यजीद की कई नामो निशान, कब्र कुछ नहीं, कचरे के ढेर में तब्दील हो गए, वासिले जहन्नम हो गए। लेकिन हुर वहाँ का था। जब यहाँ आया तो कुदरत ने कहा सुन, आ गया इधर, तब याद रख, यहाँ भी जिंदा रहेगा, वहाँ भी जिंदा रहेगा, यहाँ तेरा रोज़ा अलग से रहेगा। कि देखो ये अकेला ऐसा हुसैन का साथी है जो अचानक एक रात में आया है। और जब हुसैन के पास आया, सुने मेरा मजमा, तो मोहम्मद कह चुके थे, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मेरा हुसैन जो है वो चिराग हिदायत है, हिदायत का चिराग है, वह सफीनतुन नजात, और नजात की कश्ती है। जो हुसैन की कश्ती में आ जाए उसे नजात मिल जाती है। अरे जो हुर को इतनी नजात दे सकता है तो जो हुसैन की मोहब्बत पर पैदा हुआ है, हुसैन की मोहब्बत पर मरेगा, हुसैन उसे यहाँ भी देंगे, वहाँ भी देंगे, यहाँ भी सरदारी देंगे, वहाँ भी सरदारी देंगे। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तजिया समझिए, आग लिए जाती थी अपनी तरफ, उनको आग लिए जाती थी अपनी तरफ, एक कदम और
अहले बैत में शामिल था। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सवाल कीजिए मुफ्तियों से, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए आप। अगर ये हुर भी वहीं रहता तो अंजाम क्या होता? यहाँ आ गया तो रोज़ा बन गया। अब तमाम ज़ाहिरीन मौला के साथ हुर को अलग से सलामी देने जा रहे। देख हुसैन कश्ती नजात है, नजात की कश्ती है हुसैन। जमाना ने जन्नत का सरदार है हुसैन। अल्लाह कोई ऐसा भी है कि जो सरदारों को नाराज़ करे और फिर जन्नत की लालच करे? सरदारों के बगैर जन्नत लेना चाहते हो? सुन लीजिए, तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं। कोई तो बताते झूठे मुंह, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। बातें बहुत सारी हैं, मैंने एक तरफ रख दी। करबी मजलिस है दोपहर में। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के। फातिमा तो सैयदत निसाइल जन्ना, यह आवाज़ मोहम्मद है। पैगंबर की हदीस, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। और फिर पैगंबर कह रहे हैं अलीयुन कसीमुन नार वल जन्ना, मेरा भाई अली जो है वो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। और याद रखें, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मोहम्मद ज़बान पर कोई हर्फ लाते ही नहीं जब तक वही खुदा ना हो। अब अगर पैगंबर इनकी अज़मत बयान करे तो ये वही की तर्जुमानी है, ये हुक्म खुदा है। और शायद हुर इस राज को जान गया कि आज मेरे सामने करबला में हुसैन नहीं है, सिर्फ हुसैन नहीं है, सिर्फ वक्त का इमाम नहीं है, सिर्फ अली और फातिमा का लाल नहीं है, सिर्फ मोहम्मद का नवासा नहीं है, बल्कि जवानान जन्नत का सरदार भी है। और इसलिए आप जानते हैं, आदम से क़यामत तक मेरा दावा है, चैलेंज, यकीन, होमवर्क, मौलाना से तस्दीक कर ले, उलमा से, किसी के लिए जुमले नहीं है सिवाय इस घराने के। पूरी जन्नत इनके गिर्द घूम रही है। सबकी लालच है कि जन्नत मिल जाए। जन्नत इस घराने के गिर्द है। हुर ने इस राज को समझ लिया, अभी चला आया, खुदा की कसम, हाथों को बांध कर आया, अपने आप को गिरा दिया। इसलिए कि जब रास्ता रोका था, हुर ने रास्ता रोका था ना, लेकिन रास्ता रोकने से पहले प्यासा था, प्यासा था। इमाम तो इमाम है, निगाह इमामत से जान लिया था कि हुर अपने 1000 सिपाहियों के साथ प्यासा है। अगर हुसैन उस वक्त पानी ना पिलाते तो मख्तल और तारीख़ का जुमला है, हुर अपने पूरे सिपाहियों के साथ मौत के घाट उतर जाता, सबके सब मर जाते। लेकिन वारे करीम इब्ने करीम, करीम बाप का बेटा है हुसैन, जानते थे इल्मे इमामत से, मैं होता तो मौला अब इनको पानी पिला रहे हैं जो कल आपके बच्चों को प्यासा रखेंगे, क्या नहीं? वो उनका किरदार है, यह हम आले मोहम्मद का किरदार है। दुनिया में और हम में बहुत फ़र्क है। याद रखो, हमारे बाबा अली ने सिखाया है, हम कभी भी किसी दुश्मन को, किसी मुजरिम को उसके जुर्म से पहले सज़ा नहीं देते, और सज़ा भी उतनी ही देते हैं जितना जुर्म है। अली ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के लिए जुमला क्या कहा था? तारीख़ का जुमला है, जब मौला अली ने इब्ने मुलजिम मलून को जुमला कहा था, चूँकि इब्ने मुलजिम मलून अली के लश्कर में था, बाद में खवारिज और नहरवानियों में शामिल हो गया। अली ने कहा था, ये तेरे हाथ होंगे और मेरी गर्दन होगी, तो अपने इन हाथों से मुझे ज़रबत लगाएगा। तो इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मौला अली से कहा था, मौला इन हाथों को कता कर दें, ख़त्म कर दें, तोड़ दें, मुनक़ता कर दें। इसलिए कि ये हाथ अगर आपको शहीद करने वाले हैं, ज़रबत लगाने वाले, तो इन हाथों को क्या कर दें? काट दें।
अली ने एक जुमला कहा, इब्ने मुलजिम सुन, अली किसी भी इंसान को उसकी खता और गुनाह से पहले सज़ा नहीं देता, याद रखो। बस वही हुसैन ने कहा कि देखो कल बाबा का अंदाज ये था, आज मैं जानता हूँ कि हुर कल क्या करेगा, लश्कर हुर हमें प्यासा रखेगा, लेकिन मैं साक़ी कौसर का लाल हूँ, हम करीम इब्ने करीम हैं। हुसैन ने सबको सैराब किया। फिर उसके बाद जब नमाज की इक्तिदा का मसला आया तो हुर ने हुसैन की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। और तीसरी मंजिल वो आई कि जब हुसैन का काफिला आगे बढ़ने को हुआ तो हुर ने लजा में फरस पे हाथ रखा और उस वक्त हुसैन ने जुमला कहा था, हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। उस वक्त हुर ने कहा था, हुसैन अगर तुम्हारी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी जवाब में ये गुस्ताखी करता, लेकिन मैं बिनते रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये मक्तल का जुमला है। हुर चौंक गया कि कह तो गया हूँ मैं, लेकिन कौन फातिमा, किसकी बेटी, कौन हुसैन? अरे ये हुसैन उसी फातिमा का तो बेटा है। ये तसव्वुर के साथ जब करबला में पहुंचा है तो तड़प रहा है, बेचैन है, इधर जन्नत देखता है, इधर जहन्नम देखता है, इधर बका देखता है, इधर फना देखता है, इधर नजात देखता है, इधर गुमराही देखता है और देखता है यजीद को फना हासिल है, हुसैन वो है जो कश्ती नजात है। यजीद जो है वो बातिल का नुमाइंदा है, हुसैन हक़ का नुमाइंदा है। यजीद जो है वो शैतान का नुमाइंदा है, हुसैन रहमान का नुमाइंदा है। यजीद की परवरिश जो है वो गाने बाजों के दरमियान हुई है, हुसैन की बज़ाहिर परवरिश वही और इरहाम के साए में हुई। शायद ये तसव्वुर के साथ सुबह आशूर हुसैन के कदमों में चला आया। अरे हुसैन ने सीने से लगाया। बस आखिरी जुमला सुने, अज़ादारों, करबला के मैदान में, करबला के शहीदों में मुस्लिम इब्ने अकील करबला में पहले शहीद नहीं है। हानी इब्ने उर्वा मैदान करबला के शहीदों में पहले शहीद नहीं है, मगर किताबे करबला के पहले शहीद को मुस्लिम इब्ने अकील और हानी इब्ने उर्वा कहते हैं। अब ज़ाहिर मैदान करबला में हुर से पहले हुर का बेटा शहीद हुआ। आप बहुत रोएंगे, अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। यकीनन आपकी आवाज़ बुलंद है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन मज़लूम के। मैदान करबला में हुर से पहले हुर का बेटा शहीद हुआ, इसलिए कि हुर ने आते ही अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराया था। हुसैन ने बाजू था में, हुर मुझे शर्मिंदा ना कर, फातिमा का लाल तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। हुर ने हाथों को जोड़ा, मौला गुलाम को शर्मिंदा ना करे, मौला मैं ही जरिया बना हूँ आपको करबला तक पहुँचाने का। ये जो मसाइब व आलाम है, मैं हुर ही खतावार हूँ। अरे हुसैन ने हुर को कहा, हुर मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम मेहमान बन के आया। तो हुर ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला बस इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मेरा ग़ुलाम भी हाजिर है, मेरा बेटा भी मौजूद है। अज नज़र इख्तलाफ मकातिल ने लिखा, हुर से पहले हुर का बेटा करबला में मक्तल करबला में पहुंचा और हुर का बेटा जब घोड़े से ज़मीन पर आया तो हुर अपने जवां बेटे के लाशे पर चला और चाहता है कि जवां बेटे के लाशे को उठाए। तो क्या देखा, किसी ने पीछे से हुर के कांधे पर हाथ रखा। हुर ने पलट कर क्या देखा, मौला हुसैन है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हुर भला बूढ़ा बाप भी कई जवां बेटे का लाशा उठाता है, मैं होता तो कहता ए मौला। अरे किस दिल के साथ हुर से कह रहे हो कि कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है? ए मौला उस वक्त क्या कीजिएगा जब तेरा 18 साल का जवान अली अकबर घोड़े से जमीन पर आएगा, या बता ले मिन्नी सलाम, बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल हो। मौला उस वक्त जवान का लाशा आप कैसे उठाएंगे? अजरुकुम अल्लाह
तो मेरी आप जुमला सुनिए अज़ादारो, जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे तो हुसैन से पहले ज़ैनब अली अकबर के लाशे पर आ गई। ज़ैनब औनो मोहम्मद के लाशों पर नहीं आई, अकबर के लाशे पर आई। मैं कहूँगा शहजादी तुम अकबर के लाशे पर आ गई कि तेरे भैया से जवा का लाशा ना उठेगा। हुसैन ने बाजू पकड़कर खैमे में पहुंचाया, लेकिन शहजादी ज़ैनब उस वक्त क्या कीजिएगा जब ना तेरा अली अकबर होगा, ना औनो मोहम्मद होंगे, ना अब्बास होंगे, ना कासिम, ना हबीब होंगे, ना मुस्लिम इब्न औसजा। शिम्र का खंजर होगा, कुंद खंजर, और तेरे हुसैन का गला। उस वक्त शहजादी कहेगी मैं बुलंदी से आवाज दूंगी, ए उमर साथ मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। अरे कभी ज़ैनब ने दिल ये कहता है नजफ का रुख करके दादा अली बाबा अली को पुकारा होगा, कभी मदीने का रुख करके नाना रसूल को आवाज दी होगी, कभी फुरात का रुख करके अब्बास को आवाज दी होगी। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा। बस आखिरी जुमला सुन ले अज़ादारो, करबला के मैदान में हर शहीद शहीद है लेकिन अब्बास अलमदार है, हर सिपाही लश्कर हुसैनी है लेकिन अब्बास जो है वो लश्कर हुसैन का अलमदार है। अज़ादारो, अब्बास जब गए थे तो ज़ैनब ने जुमला कहा था, भैया जाओ अब इन बाजुओं में रस्म बंधेगी, अब चादर छिनेगी, अब खैमों को आग लगेगी। इसीलिए मकातिल ने लिखा जब ये काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम चला तो कितने सर नौके नैज़ा की बुलंदी पर थे, बीवियों की चादरें छिनी थी। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोख्त। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं लेकिन इतना जुमला सुन ले, अगर सुन सकते हैं तो सुनिए जो रोने के लिए काफ़ी है। हर शहीद का सर नौके नैज़ा की बुलंदी पर था, अब्बास का कटा हुआ सर भी, अलमदार का सर, कमरे बनी हाशिम का सर भी नौके नैज़ा की बुलंदी पर था। लेकिन ये मोतबर अरबाब मकातिल में है कि अब्बास का सर बार बार नौके नैज़ा की बुलंदी से ज़मीन पर गिर जाता था। शिम्र ताज़िया ने मारता सज्जाद को कि तेरे चचा का सर क्यों नहीं टिकता। अज़ादारो, एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, चचा अब्बास के कटे हुए सर से सवाल किया, चचा आपका सर नौके नैज़ा की बुलंदी पर क्यों नहीं टिकता। तो चचा के कटे हुए सर से आवाज आई, ए मेरे लाल सज्जाद, अरे मैं कैसे नौके नैज़ा की बुलंदी पर रहूं, इसलिए कि जब मदीने से चला था तो मैंने शहजादियों के पर्दे की जमानत ली थी। मैं बुलंदी से अपनी शहजादियों को बेमिखना वो चादर नहीं देख सकता। आ गया शाम का बाजार, आ गया शाम का बाजार। क्या करे आबिद बीमार, आ गया शाम का बाजार, आ गया आ गया शाम का बाजार, आ गया शाम का बाजार, क्या करे आबिद बीमार, आ गया शाम का बाजार। शाम शाम आ गया शाम का, गर्दन में तो के गिरा,
और पाँव में बेड़ियाँ, कैदियों पे होती है ऐसे क्या कहीं सख्तियाँ, दुर्रों से होते हैं वार, क्या करे आबिद बीमार। आ गया शाम का बस, गया शाम का बाज़ार, शाम शाम आ गया। बेकजावा ऊँटों पर माएँ फूफियाँ बैठी हैं, बेकजावा ऊँटों पर माएँ फूफियाँ बैठी हैं, हाथ भी फंसे गर्दन जालिमों ने बांधे हैं, सर पर रहना है गिरफ्तार, क्या करे आबिद बीमार। आ गया शाम का बाज़ार, क्या करे आबिद बीमार। आ गया शाम का बाज़ार, आ गया शाम शाम, गया शाम का बाज़ार। आ गया बाज़ार, फूट फूट रोते हैं हाय पाँव के छाले, जुल्म ने बिछाए हैं रास्ते में यूं कांटे, राह चलना है दुश्वार, क्या करे आबिद बीमार। आ गया शाम का बाज़ार, शाम शाम, आ गया शाम का बाज़ार, 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 आ गया शाम